All you gotta do is just all you gotta do is just हाय गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू शेयर अमित व्लॉग्स। सो आज हम लोग जा रहे हैं फयाई शोरूम एंड वी आर गोइंग टू सी द फयाई 849 टेस्टरोसा। सॉरी हल्का नाम स्पेल करना हार्ड है। सो वी आर गोइंग टू सी दैट कार एंड ऑल्सो 296 Speciale is also there. So super excited. This is a new Amalfi. This is based on Roma, right? Successor of Roma. Insane. I was not a big fan of Roma, but I love this car. But the buttons are there now because that's the biggest problem I have in my SF90. And you have the start stop instead of either beach mein. So you have this. And how much horsepower is this car producing? This is similar. It's 2 seconds faster. It's 2 seconds faster than Roma, right? I'm so happy that physical buttons are back. That's the most important thing. And the screen is very convenient compared to the old Roma. Yes. It is very convenient. It's a proper daily driven car. Yes. Oh my god. This is one Ferrari that I can do a long road trip. Such a big boot space. What do you guys think? Should I go for this for daily driven? Insane. What is the name of the color? This is the color that I was looking to go for my SF90. I still remember. Yes, this was the color. And this is what I love. The mighty B12. Mighty 296 Speciale with the racing harness seat. Insane. I think it's a Daytona seat. I have this rims, the same setup in my SV Edition 2. I have a CF rims in a SV Edition 2. It's a 296 Speciale, guys. 3-liter V6 twin turbo plug-in hybrid. Insane car. The upgraded version of 296. And it's more than 60 kilo light than normal 296. लॉन्च पे तो अच्छे से देख नहीं पाया गाइस। दिस इज द 849 टेस्टरोसा जिसकी मैं बात कर रहा था। इनसेन। दिस इज़ नाउ द सेकंड मोस्ट फास्टेस्ट कार आफ्टर SF90। अब तो SF90 को इसने टेक ओवर कर लिया बाई 70 मोर हॉर्स पावर। माई SF90 वॉज द फास्टेस्ट फ्रॉम द कंपनी वॉज 1000। दिस इज़ 1017 हॉर्स पावर V8। Insane. And love the color, love the design, and guys just look at the way they have, the aerodynamics. If you see, it's insane. Like I have explained you guys in my GT3 RS video, they have worked really hard for the aerodynamics. See this? Insane. Daytona seats, the carbon fiber one, the bucket seats. Love the interior, and I'm so happy that physical buttons are back, and they have given that the gear shifters over there. That's also nice. More focused for driver, and of course, it is how it's supposed to be. My SF90 has very less buttons. Insane. Guys, welcome back to Share Amit Vlogs. And guess what? यार ये लाइट कहाँ है? पहले तो guess what लाइट कहाँ है? Guess what guys, आज क्या आया है अपने पास? आज आया है
द V12 naturally aspirated Ferrari 12 cylinder. श्रेया मैडम ने भी ज्वाइन किया है. क्या लग रहा है यार, लव दिस. ड्राइव स्टार्ट करते हैं गाइस. मैडम बहुत गुस्सा हो रही है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कार के बारे में. वाओ, insane. The keys seem like my SF90. Hello. क्या हूँ क्या है? हाँ, गरम हो रहा है, प्लीज ना. Okay. Give it a little rev. What do you think? Should I? It's just 890 horsepower. It's not 890, it's 830 horsepower. Let's give it a little rev. Let's put it on the sports mode. No, the race mode. Let's see. What do you think? Nice, but it doesn't sound like V12. Sorry. Abhi, chup. Guys, welcome to Shreya Namit Vlogs. Missed you all so much, and I mean it. I did miss you all. और आई होप आप सब अच्छे हैं. और मैं अभी अपने पति के साथ 12 सिलेंडर में बैठी हूँ. लोग सिलेंडर के लिए लाइन लगा रहे हैं और हम 12 सिलेंडर चला रहे हैं. क्या बोलते हो इस बात पे? इस बात पे बोलता हूँ कि श्रेया सिंह एंड उसके पकाऊ जोक्स आर बैक. Ferrari 12 सिलेंडर ही अच्छी गाड़ी है, मस्त है. नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन. वाओ, बहुत रेयर है 2026 में, जबकि सारी गाड़ियां ऐसे प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ये वो हो रही हैं. और फरारी का एक तो कंफर्ट, ये देखो मैं कैसे बैठी हूँ. मैं बस फरारी में ही ऐसे बैठ सकती हूँ, बिकॉज GT3 RS में तो सोच भी नहीं सकते ऐसे बैठने का. और लैम्बो उतनी कंफर्टेबल होती नहीं है. लाइक ऑनेस्टली चलाने में मुझे दिखता नहीं है, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ. और उसके अलावा और मैं क्या बोल रही थी, हाँ, फरारी के जो कंफर्ट है ना, नथिंग कैन बीट दैट लाइक स्पोर्ट्स कार के मामले में. तो आई एम रियली आइंग ऑन दिस कार एंड अ पुरुसांगवे. So do let me know which is the better option, a Purusangue or a 12 cylinder, because our garage definitely needs a V12 engine. But the problem at Purusangue is with the new FTA. The new FTA will not give us benefit if we buy a Purusangue. Reason why? It's a plug-in hybrid V12, naturally aspirated. But if we buy this is a V12 naturally aspirated without any hybrid motor, will give us benefit in FTA. And why not? Why not take a benefit from if the government is giving this benefit, we should take that. So I think instead of going for Purusangue, I think we have a Urus. We don't need a Purusangue. I think if we go for this car, this is just going to be garage beauty, because इसको चलाने में बहुत मुश्किल तो होती है. And the area we stay in, बॉम्बे के रोड्स का जो हाल है, हम नहीं निकाल सकते. जबकि Purusangue will be more practical if you see it in a way. All our sports car in this area, you can't see. So why do you drive the most? Okay, which is the car you drive the most? Tell me. This is a logic-less question. This is very logical question, because अगर मेरे को रोज निकलना है, मैं कभी फरारी या लैम्बो, मैं उरुस लेके निकलूंगी, बट मैं हुराकन लेके नहीं जाऊंगी. The same way, he won't take the GT3 RS, he won't even take the M5. Reason being the ground clearance and the roads and the infrastructure we have here. तो सही था. 15 मिनट झगड़ने के बाद यही होता है. Happy life, happy wife. Guys, this is a 6.5 liter V12 naturally aspirated, and जैसा मैं बोल चुका हूँ vlog में, no hybrid motors, so that's the best thing. And this car is 819 horsepower, 0 to 100 in 2.9 seconds, and 0 to 200 in 7.3 seconds. आज गलत होगा तो मैं टाइम डाल. So insane car, insane. The most important thing, श्रेया ने काफी अच्छी पॉइंट बोली थी, मैं उस टाइम कट नहीं किया. All the Ferraris that we also own, like हमारे पास जो 488 and SF90 Spider, Ferraris are very comfortable. जैसे मैं अभी एकदम रिलैक्स होके चला रहा हूँ, श्रेया तो पलटी मार के बैठी है. Unlike I drive a 3RS in मुंबई, और मैं एक ऐसा होते रहता हूँ कोई गड्ढा, क्योंकि ऑनेस्टली मुंबई में हमारे वेस्टर्न लाइन पे गड्ढे अब तो तब भी कम हुए, लेकिन तब भी बहुत है. तो उसमें GT3 चलाना में मतलब पूरा बॉडी मतलब शेक होता है. So that's one thing that Ferrari is good at, कि you know it's comfortable, so you don't have that problem. Comfort wise तो बहुत अच्छा है, सब चीज़ में अच्छा है. बाकी मैं आगे बताऊंगा vlog में कि what I like about this car. अभी हम लोग आए हैं जियो मॉल पेट पूजा करने,
एंड क्या प्लान है उसके बाद? उसके बाद अभी देखो मैंने इंफोटेनमेंट आगे से लेना ना, ये नहीं लेना ना? इंफोटेनमेंट नहीं, आगे हाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने बहुत छेड़ा है इधर। इनके ये मसाजेस भी हैं, वेरी रेयर इन स्पोर्ट्स कार्स बट आजकल होते हैं तो By the way, that's a paid option, I think, no? That's Yeah. not from the company. That's a paid option. हाँ यार, स्पेक शीट पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देन आई कैन कनेक्ट कंट्रोल माई फोन व्हाटएवर लाइक मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट। There's one screen over here also. But ये लाइट में देखो ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा ना, वो पूरा वो हो जाएगा। लव द इंटीरियर बट टेस्टरोसा का इंटीरियर भी बहुत क्रेजी किया वो लोग ने। See, Ferraris. इसमें क्या है ना, Ferraris learn from their mistakes। Yeah, Ferraris learn from, but this car didn't because इसमें तब भी physical buttons है, जैसे for example indicators and बट इसमें ऑटो ऑन स्टॉप ऑन ऑफ बंद नहीं कर सकते आप। auto ons. एडास कुछ ज्यादा ही भयंकर है। ADAS तो में SF90 में भी है, पर SF90 में तो इससे भी ज्यादा मतलब बटन्स कुछ है ही नहीं। एंड इसमें तो तब भी हल्के बटन्स है। वो तो मुझे लगता है सीधा F1 का वो बना दिया है उस पे। हाँ, उसमें तो कुछ बटन्स ही नहीं दिया है वो लोग ने ना, बट जो नया टेस्टर होता है उसमें बटन्स है। अमित ये देख उधर जाने के लिए नहीं, एक्चुअली ट्रैफिक नहीं है बट थोड़ा सा मैं जाके क्लियर करा दूं क्या? वो लोग ने यहाँ पे भसड़ मचाया हुआ है। क्लियर कराओ? नहीं कोई नहीं। अरे पूरा लेन जाम कर दिया है वो लोग ने। बट यार इंटीरियर इज वेरी सटल एंड नाइस। फ्यूल कम किसी है। को एलपीजी चाहिए 12 सिलेंडर यहाँ पे है। ब्यूटीफुल कार आज के टाइम पे गाइस। इतना रॉ इंजन होना इज आल्सो टू हैव अ V12 6.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड आज के टाइम पे इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज ऑल द बिग कंपनीज लाइक Ferrari and Lambo are also cutting down their engine size. बिकॉज़ EU का नया रूल है ना 2030 वाला। पोर्शा ने If you see बोला the new Huracan, the how do you spell it? Temerario. Yeah. Temerario. Even that's a V8. Now, इंजन छोटी होती जा रही like है। my Huracan, that's a V10 naturally aspirated. The engine is getting बेब smaller. यहाँ से ना थोड़ा सा देखना, निकाल लेना, वो देख नहीं रहा है। और दूसरा एक्चुअली हाँ, और आज भी यहाँ पे कॉन्सर्ट है बाय द वे, MMRDA ग्राउंड पे हनी सिंह का कॉन्सर्ट है, तो ये सब कॉन्सर्ट वाले क्राउड है यहाँ पे। और दूसरी बात कल मैं कॉन्सर्ट में गई थी काइंड म्यूजिक के, भाई क्या था, इतना चलना पड़ा, कभी नहीं जाऊंगी मैं। और कहाँ वो लोग गाना कहाँ बजा रहे, आर्टिस्ट ही नहीं दिख रहे थे, पूरा नॉर्मल पब्लिक उनके ऊपर चढ़ गई थी टेबल बेचने के चक्कर में, ऐसा लग रहा है। ये बड़ा मुझे बेवर्ली हिल्स और मतलब कुछ अच्छा वाइब देता है ये एरिया में आके बिकॉज ऑफ द बिलबोर्ड्स। तो ये ऑटो एंड टैक्सीज इतना लगा देते हैं ना कि एंट्री तक नहीं समझ गया यार। लेकिन हाउ थॉटफुल, ये गाड़ी लग जाएगी, संभाल के जाना। देखो ये इतना नैरो पार्किंग है फॉर सेल्फ पार्किंग। यार ये ऐसा क्यों कर दिया ये लोगों ने? अमित सिंह है, टेंशन नहीं है, पार्किंग से तो क्रेजी है ही इसके। मे बी यहाँ पे मालूम ही चल जाएगा कि हाउस द कार। हाँ ऐसे थोड़ी ना, मैंने इतना अच्छा ड्राइवर से शादी की है, लाइफ टाइम है शॉफर। इतनी स्मूथली तो निकल गई। Insane guys, ये स्लोप था लेकिन ये निकल गई स्मूथली यार, बहुत स्मूथली निकल गई। insane। टाइम टू लीव द मॉल। हम फटफट गए और शॉपिंग के नाम पे ये किया और अभी खाना खाया। अच्छी थे था दोनों का, वी हैड पिज़्ज़ा और ये सब, और अब फाइनली बाहर जा रहे हैं। मुझे ना मॉल में बहुत बीटी हो रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गो आउट, ड्राइव एंड चिल, लाइक ग्रैब अ कॉफी, ड्राइव अराउंड, गो टू अटल सेतु एंड हर। सो श्रेया मैम, एक मिनट पहले तो वॉल्यूम कम किया जाए। सो श्रेया मैम चला रहे हैं तब से, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? टू गुड सर। अभी यहाँ पे गड्ढे वड्ढे में भी टेस्ट हो गया है। हाँ सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, बट लिफ्ट कर ही देती हूँ ना यहाँ पे। नहीं होगा इतने स्पीड पे लिफ्ट, बट कैसा लगा? हाउ इज एक्सपीरियंस? हाउ इज एक्सपीरियंस? 40 के अंदर। हाउ इज एक्सपीरियंस? टू गुड। She loved the car, like literally loved the car. It's a beautiful car. मैं तो अभी जस्ट कैमरा ऑन होने से पहले मैंने अमित को बोला, गाइस ये सारे गड्ढे को ना इसमें फर्क नहीं पड़ता है, मतलब दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल कार, मतलब दिस कार कैन टेक, clearance. मतलब ग्राउंड क्लियरेंस इज चुमेश्वरी टू गुड। और लिफ्ट करने के बाद तो और सॉर्टेड है। पता है जियो के उधर गार्ड ने तक बोला था, मैंने रिकॉर्ड भी किया कि उधर टच हो जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट, बट हमने लिफ्ट किया और and क्या then स्मूथली निकली, लाइक वी डिडंट इवन हैव टू स्लैंट द कार, सीधा लेके चले गए। सीधा लेके चले गए। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से सुपर कंफर्ट। ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं लगा। अब ये स्पेस देख लो गाइस, मुझे मैन्यूवर में करने में प्रॉब्लम होगा बिकॉज इसका बोनट बहुत बड़ा है एंड ऑल ऑफ दैट। आई रियली थॉट, बट आई एम सिटिंग रिलैक्स्ड एकदम। लाइक अमित वाज लाइक स्क्रीमिंग एट मी कि तू बैठते ऐसे कैसे कर सकती है, इतना बोनट बड़ा, जजमेंट तो देख ली, बट इजी मैन्यूवर, लाइक द टर्निंग रेडियस इज गुड इस गाड़ी का, और प्रॉपर जजमेंट भी मिल रहा है। ऑनेस्टली आई एम नॉट गोना लाई, आई लव
Lamborghinis, but nothing against Lambos, but nothing. बट लैम्बो में नहीं मिलता है, वो पूरी अंधी गाड़ी हो जाती है. इसमें तो बहुत क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, लाइक प्रॉपर जजमेंट, प्रॉपर हर चीज़. कुछ क्रेजी दिखाता हूँ आप लोगों को. जस्ट सी द बूट स्पेस, द ट्रंक स्पेस कितना ज़्यादा है इसमें. काफ़ी कुछ रख सकते हैं हम लोग. दिस इज़ इनसेन. दिस कलर इज़ ऑलिव ग्रीन ऑफ कोर्स, जैसा आप देख सकते हो. एग्जैक्ट नाम तो नहीं मालूम. द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक इज द मुस्टैच. आई थिंक दैट्स व्हाट दे कॉल देम. दैट्स नॉट समथिंग आई एम फॉन्ड ऑफ. हल्का सा लुक और पहले वाले 812 से हल्का सा नॉट अप टू द मार्क, बट ड्राइवेबल. It's one of the best driving car. V12 after all. Insane car. 819 horsepower. 0 to 100 in 2.9 second. बहुत अच्छी कार है गाइस. मैंने इतना अभी इसमें कम से कम I have driven more than 150 किलोमीटर today. और कुछ भी मालूम नहीं चला. कोई गड्ढे पे टच नहीं हुआ. जबकि ये बिना लिफ्टेड देखो कितना है. लिफ्ट करने के बाद और ऊपर हो जाता है. तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छी कार है ये. एंड इसका इंटीरियर का कलर आपको दिखाता हूँ मैं. काफ़ी लंबी है. इसका बोनेट हल्का सा लंबा है ज़्यादा. ये देखो आप जैसे देख सकते हो. मैं आपको वापस दिखाता हूँ. हल्की सी ज़्यादा लंबी है ये, बट स्टिल ब्यूटीफुल कार. दिस इज द इंटीरियर. लुक्स ब्यूटीफुल. सिंपल इंटीरियर तो शेयर ने बता ही चुका है. एंड यस, दैट्स इट. सो गाइज आज के लिए बस यहीं. थैंक यू सो मच आप लोग जितना मुझे प्यार देते हो उसके लिए. आज हम यहीं पे ये व्लॉग ख़त्म करेंगे. सो आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग, और जितना हो सके आप लोग प्लीज़ शेयर करना ये व्लॉग. तब तक के लिए see you guys, and please let me know, should I add a 12 cylinder in the collection, because of course we need a V12. लाइट चालू हो जाए भाई. We need a V12, or should we wait for a Devo? Let's see you guys.